Heads is the call. Tails it is. Rizwan has won the toss. चार फास्ट बॉलर्स के साथ वापडा इस मैच में आई है और ये इस बात की निशानदेही करता है कि अगर वो टॉस जीते तो उन्होंने भी बॉलिंग ही करनी थी। तो शहजाद गुल मुतारिफ हुए हैं, बहुत बार गेंद अच्छी ऊंचाई पर आई, ऑफ द विकेट तेज भी निकली। तो ये जो कहते हैं ना, ये जो इंसिडेंट अभी हुआ है इस गेंद के हवाले से, इट विल कास्ट इट शेडो टू द कमिंग क्रिकेट। गेंद तेज निकली और वो जो आप बात कर रहे थे इतनी ऊंचाई पर नहीं आई जिसको हम ब्यूटीफुल हाइट कहते हैं। तो जितना बैट सीधा रखे उतना फायदा है। ओवर पिच गेंद, ये तोहफा था, बिल्कुल सीधा वहां गया जहां इसको जाना चाहिए था, जहां ये गेंद जाने का मुस्तहिक था। फुल ब्लडी ड्राइव तो नहीं की, लेकिन सिंपली उन्होंने इस गेंद की रफ्तार का फायदा उठाया और मुंह में पड़ी हुई गेंद को जिस तरीके से खेला, आप बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। कलेक्टिंग बाय, वेल कलेक्टेड बाय रिजवान, और ये या बेरी फेरी शॉट थी लेकिन फिर भी 4 रन हासिल हो गए। ये क्या, ये डेस्परेशन थी या आप समझते हैं कमिटमेंट थी? ये दोनों ही नहीं थे, ये पिछला गेंद था जो एक अच्छी लेंथ से एक्स्ट्रा बाउंस हुआ है और शायद मोहम्मद इखलाक ने ये जहन बना लिया कि अगर अब गेंद कोई मेरी रेंज में आया तो मैं उस पे स्कोर करने जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पता कोई नहीं कि कब आपको अच्छा गेंद पड़े। अब गालिबन ये थाई पैड पे लगा है, 4 रन हो जाएंगे। ये स्टेइंग डाउन द लेग साइड था, लेग बाय के 4 रन, अच्छी गेंद नहीं थी। पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे हैं। ओवर पिच गेंद जिसको जोरदार तरीके से ड्राइव किया है, ऑफ साइड पर गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ की जानिब। फील्डर सर पर दौड़ते हुए गेंद के पीछे और नतीजा 4 रन। ये तोहफा था और सारे बैटर्स जो हैं वो ड्राइव करना पसंद करते हैं। मोहम्मद अली ने गालिबन अखलाक को चेक किया था। Oh, beautiful shot down the ground. Excellent placement and timing. That's what we know of Imran Dogar. If it's there in his zone, he's going to put it away. Which is a little tricky with the bounce. This one is pulled. No chance for the fielder. This is what Imran Dogar will do. He'll just keep on gathering those boundaries in his zone. This is into the slips. Once again, expensive shot, driving away from the body, edging it, and taken by Abid Ali into the slips. As safe as a house he is over there in the first slip. Yeah, finally it's Amir Jamal working for SNGPL. And it's Ikhlaq. He was living dangerously. That's where he liked it. He went after it. Misbah Ulaq, he's worried. Why? He's just got a wicket. He's up on his feet, but they will like it. Probably are going to check again for a no ball. That's why the batter has been asked to wait. No, that's fine. He can carry on walking back, Ikhlaq. There is no chance that this will be given a no ball. So first wicket, first breakthrough for SNGPL. Mohammad Ikhlaq will have to walk back, scoring 16 runs. It's 50 for 1. Yeah, that's beautifully driven. 2 full from Mohammad Ali. This will earn Imran Dogar in the boundary. Yeah, they all like it in the dugout because they know that boundaries have not been easy to come. That's through. The luck also favoring Imran Dogar. Could have easily gone into the slip cordon, but not this time. It has gone through for another boundary. Just have a look at him stand. Open stance. Yeah, driven beautifully, but it was pitched right up there, right in the slot. A very stable stroke that. Well timed. Another 4.
और इस तरह की क्रिकेट जब नौजवान खेलते हैं तो काफ़ी, और ये ख़राब गेंद शाहनवाज धानी का वंस अगेन लेग स्टंप से बाहर बॉल था। अम्मार ने जस्ट उनकी पेस को यूज़ किया और खेल दिया 4 रन्स के लिए। Yeah, off the back foot, nicely punched through the covers. For 4. Imran Dogo looking really good against all odds, against all difficulties. He's finding a way to hit boundaries. This time through covers. This is really good stuff. That is gone inside edge. Commentators curse. So we just spoke about the good things that he has done with the bat, and suddenly he slashes at a ball which wasn't there to drive, and he drags it on. So Wabda lose their second. A set batter who was looking good is now gone. Yeah, against all odds. We spoke about it earlier. But this one, a flashy shot outside the off stump. Amir Jamal with another wicket. They're still waiting. They're just probably going to check for the no ball. Amir Jamal, we know that has a habit of stepping over. They'll all be praying that that hasn't happened at this occasion. Yeah, again, quite comfortably inside that line, Amir Jamal. So yes, now you can say that second wicket has been taken. Another breakthrough, courtesy Amir Jamal. Mohammad Imran Dogar, who looked so good for his 38 runs. But this shot, he will not be proud of. It's 80 for 2. Oh, it looms like an edge. Yes, it is. The finger is raised. He was consistently bowling in that right area, Amir Jamal. Sherwood Siraj losing his patience, went after it. And a smart catch by the captain behind the stumps. The extra bounce in the end proving too hard to handle for the batter Sharoon. He wasn't comfortable. He had received an odd delivery which was just taking off. There's no problems with the front foot. And the batter will have to leave as Wabda, closing towards lunch, have lost their third wicket. Spooned up in the air, lucky that it flies into the vacant region between gully and point. Wabda get another valuable boundary, but risky stuff this. Amar not in any position. And he survives. He lets it go. So that's it. Lunch. Day 1 of the final of Aircel presents University of Lahore President Cup. Wabda scoring 87 runs, losing 3 wickets after being asked by the SNGPL captain Rizwan to go and have a bat first. He's taken 3 wickets, and all 3 wickets going to Amir Jamal. Ayaz and Amar doing well in the end, surviving there. That kind of a session where Wabda would think that they've done well, and so I guess would think they haven't done too badly either. Had they bowled a bit better, they might have had a couple of more wickets, and that's exactly what would be discussed in the huddle now. And the captain would let them know that the value of giving away runs over here, because this pitch is not easy to bat, and they've all witnessed that, and they would want to avoid giving away free runs. Yeah, all 3 wickets going to Amir Jamal. Right, it's time. तो once again continue करते हुए आमिर जमाल। डिफाई स्ट्रोक सीधे बल्ले के साथ। ये प्रॉपर तरीका है बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर जो होते हैं आमतौर पे बैट बड़ा स्ट्रेट होता है। वाबडा इस वक्त 88 पर खेलता हुआ। शहजाद गुल ने फुलर वन बॉल किया, जिसको बड़े ही एलिगेंटली प्ले कर दिया डीप कवर की जानिब। बॉल जाता हुआ बाउंड्री लाइन की तरफ। एक इजी है, बेहतरीन शॉट अयाज का। इनको पुल करने में और हुक करने में कहते हैं ना यदेतुल्ला हासिल है, और इस बार ऐसे ही हुआ और 4 रन हासिल किए बैट्समैन ने। ये अच्छा अंदाज था जो है वो, और ये अच्छी बॉल थी, एज लगा था, लेकिन स्लिप्स के दरमियान से होता हुआ बॉल चला गया थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। लकी 4 रन्स, और कुछ किस्मत का भी मैं यहाँ पर कहूँगा कि कुछ किस्मत की देवी है, बहुत मेहरबानी अपनी जाहिर करती हुई दोनों बैटर्स के ऊपर।
अभी काफ़ी सफ़र करना है। एक अच्छा सेशन कहना होगा फॉर वैपटा। बिल्कुल पूरे तरह से डोमिनेट किया है वापडा ने, और पहले सेशन में 3 विकेट्स गिरी थी। इस सेशन में कोई भी बॉलर का तो टारगेट की आपने बात करी, अगर 350 से 400 का पहली इनिंग्स में बना लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होगा। नहीं ऐसा एक विकेट या एक कामयाबी हासिल करती है अगर SNGPL, तो आगे आने वाले बैटर्स के लिए भी एक टेस्ट होगा कि वो किस तरह की बल्ले। हर बैटर हर दिन अच्छी बारी नहीं कर सकता, तो लेट्स सी। बड़ी आज गहमा गहमी रही इन अ वे कि रन भी बने, फिर अच्छी फाइट बैक भी हुई। ओवरऑल बड़ी एब्जॉर्ब मैं कहूँगा फ्रॉम वैपटा हु हैव नाउ मैच आफ्टर 45 ओवर्स। ये ओवर्स का खेल नहीं है, दिनों का खेल है। अगले सेशन में अगर बात करें तो 87 रन बने और दूसरा सेशन बड़ा सबराज था। 56 रन बने। शाहनवाज धानी ने आखिरी ओवर की 8 आउट 29 रन पर और अय्याज ने 26 रन बना। जहाँ तक बैटिंग परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, आप देख सकते हैं कि इमरान ने 38, अमार ने 29 नॉट आउट, और जबकि शारून सिफर पर आउट हुए। 26 रन पर नॉट आउट हैं अय्याज। ये दोनों काफ़ी गेंदें खेल चुके हैं, विकेट पर मौजूद हैं, कर रहे हैं टू रीच ग्रेटर हाइट्स, लेकिन इसमें भी काफ़ी सफर तय कर वैपटा को। वैपटा ज़ाहिर के बैटिंग फर्स्ट क्योंकि टॉस जीत SNGPL ये हाइट्स हैं अब तक की जो देखा। ये अच्छी पुल शॉट वन साइड ऑफ साइड पर फिर बाहर सीधी हुए बैटर और आमिर जमाल ने कामयाबी हासिल। फ्लिक ये खड़े खड़े इसको पुल करने की कोशिश किया बैट को, और दूसरे स्लिप में काम तमाम हुआ बैटर का। रही ये सिलसिला जारी रहा बार बार, लेकिन दोनों बैटर विकेट पर मौजूद रहे और इस तरह का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। तो चेक यहाँ खत्म होगा। एक बार फिर हम आपका खैर मकदम करेंगे गद्दाफी स्टॉप से। So you guys, I think the bowling order, they haven't got it right as well. Around the wicket straight away, just played down the ground. And here it is, the much awaited wicket. Once again the batter chops on, not in a position to cut the ball, and in the end Amar has to leave. His long effort has come to an end via inside edge, and Shahzad is the man. Yeah, finally it's worked for Shahzad. Finally it's worked for SNGPL bowler. He's worked really hard, he's bowled really well. Finally he's been rewarded. Not quite yet, because the batter has been asked to just wait a little. As probably are they going to check for a no ball. But Amar probably realizing, and he started moving back towards his dugout. It's working. Maybe the fourth wicket is lost for Wabda. Yeah, they've, I think, confirmed the no ball part, and everything is okay. So the batter, yeah, no problems with the front foot. This is a norm these days. They tend to check the front foot, and here it is, a side angle of how Amar chopped it on. The new batter is Bismillah Khan. He can be a dasher on his day. A person who has a lot of strokes up his sleeve, can play all around the wicket, and can be very destructive to any opposition on his day. Yep, that's what he's good at. Bismillah Khan. He's up and running with the boundary through third. This is good, positive start from him. मतलब और मकसद ये था, और आपकी भी राय लेंगे। उतनी ऊपर गई नहीं, अच्छा स्टेयर किया, महफूज था मेरे ख्याल में, और ये अच्छी डाइव, लेकिन 4 रन हो गए। ज़रा इस पर अगर हम नज़र डालें तो ये विद द पर्पस था। बहुत ही उम्दगी के साथ इस शॉर्ट बॉल को कंट्रोल किया बिस्मिल्लाह ने, इसकी डायरेक्शन को भी, इसके बाउंस को भी। और इसका जिक्र उन्होंने कमेंट्स में भी किया कि जो पिछली मीटिंग हुई थी इन दोनों की टीमों के दरमियान में, उसमें फतह
हासिल की थी वापडा ने, लेकिन उन्होंने जिक्र किया यहाँ पर एक और बाउंड्री हासिल कर ली लेग स्टंप की तरफ। फाइन लेग पे खेला बड़ा फाइन बिस्मिल्लाह ने, और इसी के साथ ही 200 अप फॉर वापडा। और ये वापडा का डग आउट इस वक्त खुशी का माहौल है और परेशानी का आलम होगा SNGPL के लिए। ऊंचा खेल दिया है, मीट ऑफ द बैट, लेकिन फिर भी कनेक्ट सही नहीं हुई और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच। तो इस तरह ये विकेट खो बैठे। अब अयाज और शाहनवाज धानी खुश हैं और उन्होंने खुशी से एक जेस्चर दिया कि हियर आई गो, मैंने ये कामयाबी हासिल कर ली है और विकेट मिल चुकी है। अब SNGPL को एक अच्छी रफाकत खत्म हुई। अयाज 57 रन बनाकर शाहनवाज धानी के हाथों आउट हुए। उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, एक सॉफ्ट डिसमिसल था। तो ये रफाकत खत्म हुई और कहना होगा कि अब तो जो मैनेजमेंट है SNGPL की वो भी कहती होगी कि बहरहाल अब कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो ये एक कीमती विकेट थी जो कि गिर चुकी है और आगे क्या होगा दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। और काफ़ी मार्जिन से ये बॉल लीगल बॉल करार दिया। इससे पहले भी इसी ओवर के अंदर विकेट निकालने में कामयाब हो गए थे बिस्मिल्लाह की, लेकिन आमिर जमाल ने एक आसान सा कैच स्लिप में ड्रॉप कर दिया। लेकिन इस मरतबा गेंद काफ़ी देर हवा में रही, लेकिन नीचे खड़े थे शहजाद, कोई गलती नहीं की उन्होंने आई थिंक। फुल टॉस, ड्राइव ऑफ साइड पर, अच्छा स्ट्रोक है, ये चौका होगा। बड़ी देर के बाद ये ड्राइव लगी है और बिल्कुल बीट ऑफ द बैट। बिस्मिल्लाह नहीं छोड़ते आगे पड़ी हुई गेंदों को और बड़ी महारत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी अच्छी समत में स्ट्रोक को खेला, जो कि मेरे ख्याल में मोहम्मद अली के लिए एक तोहफा था बिस्मिल्लाह के लिए। मोर टू बी बोल 90 ओवर्स का खेल, 25 ओवर जैसे मैंने पहले कहा। पुल, अच्छा अंदाज है और ये बिस्मिल्लाह कहना होगा एट हिज बेस्ट है। पहले ऑफ ड्राइव और फिर पुल, बड़ी शानदार। शफकत राना साहब ने इस दफ़ा तालियां बजाई हैं क्योंकि वो ज़ाहिर स्ट्रोक मेकिंग को पसंद करते हैं, खुद स्ट्रोक मेकर रहे हैं, मसरूफ़ अमल हैं। अच्छी बात यह है कि इन दोनों इदारों में इस अगले ओवर पे बात करेंगे क्योंकि अब 70 ओवरों का खेल मुकम्मल हो गया है। वापडा 233 6 विकेटों के नुकसान पर। अंपायर इस वक्त इंस्पेक्शन करते हुए ग्राउंड की सूरत हाल की, क्योंकि रोशनी लम्हा ब लम्हा जो है और मैच के इख्तिताम का मेरे ख्याल में बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन खिलाड़ी बाहर की तरफ जा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि लाइट की सूरत हाल में अब काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी ख़राबी आई, लेकिन अभी लाइट मीटर्स जो है उसे राशिद रियाज देख रहे हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो बाहर जा रहे हैं। बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया या नहीं कर दिया गया इसके हमें अभी ऑफिशियली कोई इंटीमेशन नहीं है, लेकिन 233 पर 6 70 ओवरों के बाद खेल को ख़राब रोशनी की वजह से रोका गया है क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर अभी विकेट पर मौजूद हैं। और अब ग्राउंड स्टाफ जो है वो भी मैदान के अंदर दाखिल हो चुका है विद कवर्स। और अब जबकि अभी 20 ओवरों का खेल बाकी था, खेल को रोक दिया गया है एंड द ग्राउंड स्टाफ दे आर टेकिंग द कवर्स ऑन अ ऑटोमोबाइल और अभी हिसाब किताब कर रहे हैं राशिद रियाज।